morning. Welcome back to another class of zoology. Right, I am changing my introductory verbatim a little bit. Right. We are starting up a new chapter associated with human physiology. Now, the intention I have taken this particular chapter is my ease, very honestly, right? I did not want, because this is one of the easiest chapter and this could be done very easily in video. There are a few chapters I really don't want to make. After this, maybe we will take up Animal Kingdom. But Animal Kingdom again on video turns out to be very boring because there are so many new terminologies which you need to be aware of. And अगर real time मेरे पास projector screen होता wherein I can show you certain animals and certain videos related to animals, right? So here, this particular chapter, why have we taken this particular chapter? Because a lot of things we already know. We have studied in our 10th grade. We have studied the structure of heart, which I think is one of the easiest part, right? So a lot of things can be related. A lot of things can be understood in the terms of video, right? So we have left 2 chapters, ideally not 2 chapters, 4 chapters of the sequence, and we have directly jumped to the 3rd chapter of human physiology. It is a pretty easy chapter, right? So let's get started and let's see how it goes, right? So the name of the chapter says body fluids and circulations. So technically यहाँ पे 2 major words है, body fluids and circulation. So जब मैं body fluids की बात कर रहा हूँ, the initial part of the chapter will only talk about body fluids, right? Body के अंदर जितने भी fluids है, we'll talk about that. We'll list out those fluids. And the next part of the chapter will only talk about circulation. How are these body fluids? Principally, we'll be talking about 2 body fluids, that is lymph and blood. तो पूरा का पूरा सिलसिला ब्लड पे चलता है. We'll talk about how are these body fluids circulated in your body and what is the function of the circulatory system. That is what we'll have to deal with, ठीक है, in this section. And we will also talk about the functioning of the heart, and also we'll also talk about certain diagnostic techniques of the heart. इस chapter में भी there are a few videos which I have to show you, but let me see if I can send you the links on the classroom so you can do it on your own. Or maybe I can arrange a live session where you can see that particular video. Cool. So that is all with respect to the introduction of the chapter. The chapter is pretty interesting. ठीक है, 1 or 2 questions are expected from this particular chapter. When I say human physiology में ये कुछ chapters ऐसे हैं जिससे 1 question expected है, but this is one of the chapter where 2 questions are expected. ठीक है. Proper guidelines with respect to understanding this chapter. You have to make sure that you're reading your NCERT very clearly, because NCERT में कुछ इस चैप्टर के रिलेटेड एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे. मतलब टेक्निकली दे विल कंफ्यूज यू विद द लैंग्वेज, राइट? सो इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द कांसेप्ट, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम विद यू गाइस, ठीक है. और मेरे को आपको ये भी सजेशंस में बताना है कि इज दिस लैंग्वेज कंफर्टेबल, बिकॉज शायद ही आई एम नॉट सेइंग दैट, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि you might be getting English complete. पूरे most of the lectures goes in English specifically for zoology. बाकी subjects में I think more of Hindi is being incorporated. I am trying to do that बेटा, but then वही चीज है, मेरा principal ही वो बोलता है कि if you have to read your textbooks, if you have to write your exams in English, so you will have to listen in English, ठीक है. और वीडियो की एक एडवांटेज ये है कि आप स्टॉप करके वापस रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, वापस सुन सकते हो, राइट? द मोर यू लिसन टू द लैंग्वेज, द मोर पॉलिश्ड इट विल बी, ठीक है. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड देन वील टॉक अबाउट सर्कुलेशन. वी आर नॉट टचिंग सर्कुलेशन एज ऑफ नाउ, ठीक है. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बॉडी फ्लूइड्स. तो मैं चैप्टर का नाम में से ये इरेज नहीं करूंगा, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बॉडी फ्लूइड्स स्पेसिफिकली,
पता नहीं ऐसे ऐसे कैसे हो गया। When you talk about body fluids, there are two major type of body fluids. ठीक है, one is called as ICF, and the other is called as ECF. ठीक है, ICF refers to intracellular fluid, and ECF refers to extracellular fluid. अभी बहुत ही हमने रिसेंटली ब्लड का टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, ब्लड का टॉपिक पढ़ा हुआ है ये पिछले चैप्टर में, सो आई एम नॉट डूइंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड वंस अगेन, बट मेक श्योर दिस इज वन डिस्क्लेमर, one most important information which I am giving it to you pertaining to this chapter. You will also have to study blood from that chapter, that is structural organization. ठीक है बेटा, तो बात करते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर, एंड ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर है, कॉमन सेंस है ना, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। सो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को मैं ये बोल सकता हूं, सो टेक्निकली when I use the word intracellular fluid, what am I indicating? I am talking about the cytoplasm of the fluid. ठीक है, cytoplasm of the fluid. We know what is cytoplasm. We know that cytoplasm is a jelly-like semi-solid matrix of the cell. Correct? So when you talk about the composition of the cytoplasm, you have to understand that cytoplasm is isotonic. ठीक है, isotonic मतलब on an average when you talk about the concentration of the solutes, ठीक है, pertaining to the concentration of the water, it's almost the same. It is on an average equal concentration में, so it is isotonic. ठीक है, apart from this, one important point which you need to remember, star mark डाल रहा हूँ, that is cytoplasm has K plus in abundance. ठीक है, so in cytoplasm K plus will be in abundance. Concentration of, ये मेरे को इधर लिखना चाहिए था, एक मिनट, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ICF में ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है कि इसे आप आपके दिल में गांठ मार लो, टैटू बना लो, माथे पे लिख लो, जो करना कर लो, ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट ICF में concentration of K plus is more and ECF में concentration of Na plus is more, because these two are your principal ions. ठीक है, you will talk about these ions when we deal with the chapter called as neural control. ये दो प्रिंसिपल आयन्स हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, राइट? सो प्रीरेक्विजिट इंफॉर्मेशन इज दैट यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड दैट इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कौन ज्यादा है बेटा? K प्लस ज्यादा है। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में कोई भी एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड हो उसमें Na प्लस ज्यादा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज कीप दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अब साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का सिंथेसिस भी होगा, सो अपार्ट फ्रॉम दिस इट विल आल्सो कंटेन प्रोटीन्स, इट विल कंटेन सॉल्ट्स, ठीक है, एंड ऑल अदर सॉल्ट्स स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट NaCl हो या साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी कंपोनेंट्स आते हैं वो सारे इंक्लूड करेंगे इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट K प्लस हियर, K प्लस और ये सब चीजें जो है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ECF, कॉमन सेंस बेटा, अगर मैं सेल के अंदर सॉल्ट्स की बात करूं, सेल के अंदर प्रोटीन्स की बात करूं, तो यहाँ पे कॉमन सेंस हमारा लगता है कि सेल एक क्लोज्ड मीडियम है, तो सेल इज कॉन्स्टेंटली रिसीविंग द न्यूट्रिएंट्स, सेल इज कॉन्स्टेंटली रिसीविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ECF एंड अल्टीमेटली इट इज मेटाबोलाइजिंग, मतलब ग्लूकोज वो एक्सेप्ट कर रहा है, ग्लूकोज से वो एनर्जी बना रहा है, ATP बना रहा है, एंड अल्टीमेटली ATP इज आल्सो केमिकल मॉलिक्यूल दो, राइट? सो एज यू कंपेयर इट विद द ECF, क्योंकि ECF एक पूरा झरना है, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं बेटा कि ECF एक पूरा झरना है और ICF एक बकेट भर ऑफ वाटर है, ठीक है, और अगर आपने कंपैरेटिवली ये पूछा
कि मछली किस में ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो इफ यू कंपेयर इट इन बोथ दी टर्मिनोलॉजीज, इन बोथ दी सेक्शंस, ये क्लोज्ड सिस्टम है, तो ये क्लोज्ड सिस्टम है। अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं देखूं तो शायद 2 राजा रानी मछली पकड़े हैं तो बच्चे देंगे और बच्चे देंगे और बच्चे देंगे, सो द नंबर ऑफ फिशेस विल इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर बकेट। बट whereas when you talk about the ECF तो झरना है ना, फ्लोइंग वाटर है, so you really can't count the number of fishes there. अभी अंडरस्टैंडिंग इट, तो सेम यू रियली कैन काउंट इट, मतलब राजा रानी तो बहुत सारे हैं, बच्चे तो बहुत सारे हुए, वो बच्चे टिके क्या वहां पे, है ना। So for comparing, so in other terms, because this is a wide variety, ठीक है, this is a fluid which is extracellular fluid is present in larger concentration, or not concentration but larger amount. If you talk about the presence of salts and proteins and K plus comparatively, ECF में वो ज्यादा है because ECF is a closed medium, cytoplasm is a closed medium. Very clearly understood बेटा, ठीक है। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जो है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है, बट कुछ सेलिएंट फीचर्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स लिख लेंगे। तो सेलिएंट फीचर्स क्या है, दैट एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड इज आल्सो जनरली आइसोटोनिक, ठीक है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड आल्सो इज जनरली आइसोटोनिक। The fluid का concentration might change pertaining to the external abilities या external requirement. For example, अगर आपकी salt intake बहुत ज्यादा है ना, अगर आप बहुत ज्यादा नमक खाते हो, so ultimately नमक कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। For that momentarily time when you आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप नमक खाने के बाद आपको प्यास लगती है, ये बॉडी की होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है। when you consume a little amount of salt, that little amount of salt is creating a bulk, it is creating a spike amount concentration। अचानक से बहुत ज्यादा salt तुमने इंटेक कर लिया है, ठीक है, और उसको बैलेंस, मतलब अचानक से ब्लड की concentration of salt, ब्लड की टोनिसिटी, when I say tonicity, concentration, ब्लड की टोनिसिटी जो है अचानक से इंक्रीज हो गई, तो ब्लड has become hypertonic, ठीक है। तो इसीलिए आप वाटर कंज्यूम करते हो टू बैलेंस द ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉडी ट्राइज टू मेंटेन, स्पेसिफिकली हियर वी टॉकिंग अबाउट ब्लड के कंपैरिजन में हम बाकी सब उसी हिसाब से समझेंगे। तो जनरली, और बिकॉज़ होम्योस्टैसिस बोलता है ऑल द ECF, all the fluids of your body should be present in the isotonic state, ठीक है। अगर हाइपरटोनिक हो गया माने ब्लड हाइपरटोनिक हो गया, मतलब ब्लड में सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है, तो ब्लड में अगर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली देयर विल बी हार्मोनल सिक्रीशन, ठीक है, एंड ब्लड में से सॉल्ट्स निकाले जाएंगे। इज दैट वेरी क्लियर? सो हाई ऑस्मोलैरिटी अगर हुआ तो ब्लड, मतलब किडनी इज प्लेइंग अ मेजर रोल। सो इन अदर वर्ड्स होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए योर ब्लड, kidney, and also your heart also plays a major role. We'll study all of that in a chapter called as excretion. So अब जानने के लिए आपको यही याद रखना है कि आइसोटोनिसिटी मेंटेन होती है होम्योस्टैटिकली, बिकॉज बॉडी बैलेंस चाहता है, बॉडी ऑप्टिमम कंडीशन चाहता है, बट द कंडीशन माइट चेंज, ठीक है, बट होम्योस्टैटिकली इट इज मेंटेन्ड एट आइसोटोनिक कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ECF is rich in, ये भी आपको सेंटेंस गांठ मारनी है, ECF में concentration of Na plus is more comparatively, ठीक है। इसके अलावा ECF में there will be calcium, because calcium also plays a major role in blood clotting, ये भी हमने डिस्कस किया था। calcium is factor number 4 if you remember, ठीक है। so blood में calcium होगा, apart from that blood में फॉस्फेट आयंस होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे, ठीक है, PO4-3 फॉस्फेट आयंस होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे। ये सब आयंस का मेजर फंक्शंस देखो, आपको आगे चलकर एक चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहां पे क्लोराइड समझेगा आपको कहां पे आ रहा है, आपको HCO3- समझेगा कहां पे आ रहा है, ठीक है। सो स्पेसिफिकली ऑल दीज आयंस आर आल्सो प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम, ठीक है बेटा, apart from other ions, when you talk about these specific ions, they are present in larger quantity, they are present in larger amount as compared to that, ठीक है।
So that is with respect to the extracellular fluid. Now let's talk about these types of extracellular fluid. ठीक है, so types of extracellular fluid में सबसे important, सबसे पहला वाला fluid जो हम लोग लिखेंगे that is blood. ठीक है, ब्लड को हमको डिटेल में बात करना है, सो हम इधर यहाँ पे लिखते नहीं है ब्लड के बारे में. ठीक है, सो हियर व्हेन यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ ब्लड, इट अकाउंट्स फॉर 30 to 35%, 30 to 35% ऑफ ECF. ठीक है, सो ये पहला कौन ये था. उसके बाद दूसरा जो है दैट इज लिम्फ. Lymph is also called as, याद है lymph को क्या बोलते हैं? Lymph is also called as tissue fluid. So here lymph also is associated with certain amount of presence of certain amount of salt. So lymph जो है that is also called as tissue fluid, क्योंकि ये टिश्यू के अराउंड प्रेजेंट होगा और लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होगा. यू डोंट हैव टू रिमेंबर, ये जो नंबर्स लिख रहा हूं ये आपको याद नहीं करने हैं, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन के जैसे याद करना है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द थर्ड type of fluid which is also called as CSF, that is cerebrospinal fluid. CSF, that is cerebrospinal fluid. Now cerebrospinal fluid कहाँ पे present है? It is present in the ventricles of the brain and canal of spinal cord. ठीक है, CSF cerebrospinal fluid नाम बता रहा है, इट इज प्रेजेंट इन द सेरिब्रम, मतलब ब्रेन के कुछ एम्प्टी स्पेसेस व्हिच आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. ब्रेन में 4 एम्प्टी स्पेसेस आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, तो ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में ये प्रेजेंट है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, आई एम वेरी पर्टिकुलरली मेकिंग श्योर दैट कलर जो है यूनिफॉर्म रहे, है ना. Next one. So the next fluid which we talk about, cerebrospinal fluid के बाद there is one more fluid. I don't know what is happening. My mistake on that particular point. Please excuse for that. मैं edit नहीं करूँगा, ठीक है. मुझे घंटा आता है edit करना भी, और आता नहीं है टेक्निकली. I am not a tech savvy person, very honestly. ठीक है, बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं रहते. चलो फोर्थ इज योर साइनोवियल फ्लूइड. ठीक है बेटा, साइनोवियल फ्लूइड, वेयर इज साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट? साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट between joints. It is present in the joints. कौन से joints? Freely movable joints. ठीक है, freely movable joints. It is just like a greasing tissue. So ये जो आपके फिंगर्स है, ये आपके दो बोन्स के बीच में है, आपके नी में साइनोवियल फ्लूइड है. ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड हियर, अंडरस्टैंड हियर, साइनोवियल फ्लूइड comes from it. The word synovial is coming from two major words. सिन का मतलब क्या है? फ्यूजन. आपने वर्ड सुना होगा सिन क्या है? सिन का मतलब है फ्यूजन. और यहाँ पे ओवी का मतलब है एग, है ना, ओवम, ओवी. तो synovial या synovial, whatever you want to pronounce it as, it is synovial fluid. ठीक है, ovial मतलब egg. तो ये फ्लूइड की जो कंसिस्टेंसी है, ये और ये इनकी फ्लूइड की कंसिस्टेंसी आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज़ cerebrospinal fluid is much watery. ठीक है, lymph is also much watery. ये थोड़ा सा विस्कस है because of the presence of RBCs. ये भी हमने बात किया था इन दी चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट RBC is responsible for the viscosity of the blood. ठीक है, तो ये विस्कस है, ये मच मोर वाटरी है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट synovial fluid has a consistency of egg white. ठीक है, इसीलिए नाम synovial दिया है बेटा. सिन का मतलब है फ्यूजन. तो ये कहां पे प्रेजेंट है? जॉइंट्स में प्रेजेंट है, जहां पे वो दो जॉइंट्स के, दो बोन्स के बीच में है. Very clear? The freely movable joints. Any freely movable joint you take, there is synovial fluid.
Synovial fluid cannot be seen between the vertebral column, मतलब between the vertebrae. Synovial fluid is not present between the facial bones because ये सब जो bones है देख ये immovable joints है, कुछ movable joints है, freely movable joints. So मेरे shoulder के joints में भी synovial fluid होगा, ठीक है? So नाम इसलिए क्यों दिया है? Because it has the consistency of, it has the consistency, consistency का माने thickness, consistency of egg white. Very clear on that? ठीक है बेटा? चलो next. The next fluid, so that is associated greasing के जैसे काम कर रहा है, ठीक है? इसके बारे में और अपन locomotional movements भी पढ़ेंगे. Apart from that, there is also another fluid that is serous fluid. 7 आना चाहिए यहां पे. That is your serous fluid. ठीक है? Where is serous fluid present? Serous fluid is present between the membranes. एग्जाम्पल है serous fluid के, एग्जाम्पल है peripleural fluid, pericardial fluid, etc. ठीक है? तो watery secretion जो है that is referred to as serous fluid और serous secretion. तो ये कहां पे present होंगे? It will be technically present in the between, मतलब pericardium जो है अपने, हमने ये भी पढ़ा था pericardium इसमें एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा है, ये और ये दोनों वर्ड आया है पेरिपेरुल, इसीलिए वो चैप्टर पहले लेते हैं. तो ये दोनों वर्ड्स वहां पे आए हैं. तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ लिक्विडी फ्लूइड, देयर इज अ वाटरी फ्लूइड व्हिच इज मच मोर कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड सीरस फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन दी प्रेजेंट बिटवीन दी मेम्ब्रेन्स. ठीक है बेटा? कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे ये याद रख लेना बेटा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं तो इसको याद रख लेना. ठीक है? इसके अलावा दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी सबड्यूरल स्पेस. अब सबड्यूरल स्पेस आप पढ़ोगे, आप ब्रेन में पढ़ोगे सबड्यूरल स्पेस. ठीक है? ब्रेन की 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स है, ड्यूरा मेटर, अरेक्नॉइड मेटर एंड पाया मेटर. सो फर्स्ट 2 लेयर्स ड्यूरा और अरेक्नॉइड के बीच में देयर इज सीरस फ्लूइड. ठीक है? सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सीरस फ्लूइड. उसके बाद जो है दैट इज the next type of fluid is your intraocular fluid. Intraocular fluid. Intraocular मतलब inside the ocular, ocular माने eyes, right? So it is present. हाँ मैंने कलर चेंज कर दिया, मैं कलर चेंज नहीं करना चाहता तो मैं वापस इरेज करूंगा, वापस सेम टू सेम चीज लिखूंगा. ठीक है? I am trying to keep a uniformity with respect to the board presentation. मेरे को अच्छा लगता है ना? बट मैं भूल जाता हूँ. मैं 2-3 लेक्चर्स में देख रहा था, I was seeing my own lectures and then मैंने देखा कि कब मैं I was trying to make sure कि बोर्ड थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे, है ना? Because it is very important, because मैं प्रूफ दे रहा हूँ ना आपको कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ. ठीक है? तो कम बैक, ये सब चीजें भूल जाओ, ये सब चीजों को आप 10 सेकंड फॉरवर्ड भी कर सकते हो, भूल जाओ. यहां पे हम लिखेंगे इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड. इंट्राओक्यूलर फ्लूइड, दैट मींस द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द आईज. प्रेजेंट इन द आईज. ऑक्यूलर का मतलब क्या बेटा? ऑक्यूलर माने आईज. ठीक है? अब आंखों के अंदर देयर आर 2 मेजर फ्लूइड, one which is much more watery and one which is much more viscous. ठीक है? So ठीक है? So you have something called as aqueous humor, and the other is called as vitreous humor.
ठीक है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। नाम बता रहा है एक्वस ह्यूमर, हियर रेफर्स टू बॉडी फ्लूइड्स। ह्यूमर इज द लैटिन टर्म फॉर फ्लूइड्स। सो एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर नाम बता रहा है इट इज मच मोर वाटरी। सो एक्वस ह्यूमर इज present in the anterior chamber. Aqueous humor is present in the anterior chamber of the eyes. So मतलब आंख अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, दिस इज योर लेंस, ये एंटीरियर चेंबर है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? एक्वस ह्यूमर। और ये पोस्टीरियर चेंबर है, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? विट्रस ह्यूमर। इसके बारे में भी हम ब्रेन में पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। सो एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट इन दी एंटीरियर चेंबर, विट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट इन दी पोस्टीरियर चेंबर, ठीक है, पोस्टीरियर चेंबर। अब इन दोनों में फर्क क्या है बेटा कि एक्वस ह्यूमर जो है, एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड इन योर एंटायर लाइफ, मतलब टेक्निकली इट इज वन फ्लूइड व्हिच कीप्स ऑन, व्हिच इज सिंथेसाइज्ड रेगुलरली। बिकॉज़ इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? टू नरिश द कॉर्निया। जो आपका आंखों का ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको नरिश करने का काम कर रहा है, दैट इज एक्वस ह्यूमर। इट नरिशेस द कॉर्निया एंड आल्सो द लेंसेस नहीं लेंस। बट विट्रस ह्यूमर जो है, विट्रस ह्यूमर इज एसोसिएटेड विद द साइज ऑफ द आईबॉल। पोस्टीरियर चेंबर में इट इज मच मोर जेली लाइक। वी स्पोक अबाउट विट्रस ह्यूमर व्हेन वी डिड म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो विट्रस ह्यूमर जो है बेटा, ये आपके इंट्रायूट्राइन लाइफ में बनता है, मतलब टेक्निकली इट इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर यू आर बोर्न। That is why we are born with the same size of eyeball and we die with the same size of eyeball. आपने अगर छोटे बच्चों के आंखों को देखा रहेगा तो छोटे बच्चों के जो कॉर्नियल रीजन है दैट इज कंपैरेटिवली मोर, है ना। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका जो व्हाइट पोर्शन ज्यादा दिखने लगता है। सो बोलने का मतलब ये है दैट साइज ऑफ द आईबॉल डजंट चेंज थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। इनफैक्ट आपकी आंखों की जो क्वालिटी है वो डिमिनिश होती है, बट साइज ऑफ द आईबॉल डज नॉट चेंज। Did you understand that much? So that architecture, that proper size of the eyeball is maintained by your vitreous humor, and vitreous humor is produced by the cells of the retina in the intrauterine life. In that particular time when your eyes were not taking any particular function, ठीक है। तो आंखों की आर्किटेक्चर, आंखों की साइज मेंटेन करने के लिए यू हैव विट्रस ह्यूमर एंड आंखों को नरिशमेंट, टेक्निकली कॉर्निया और लेंस, इनको नरिशमेंट देने के लिए यू हैव एक्वस ह्यूमर, एंड एक्वस ह्यूमर इज रिप्लेनिश्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट योर लाइफ। विट्रस ह्यूमर इज कांस्टेंट, इट इज नॉट, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है बेटा। So that was the introductory session with respect to body fluids. Now we'll have to talk about बाकी सब बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम लोग इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, जितना बात करना था यहाँ पे बात कर लिया है। नाउ जो कम लिखा है हमने उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, दैट इज योर ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। So I have given you the notes. So that is your wish. मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्लड का टॉपिक कॉपी कर ले सकते हो। Okay, so now let's talk about blood, and then last section में हम लोग लिम्फ के बारे में बात करेंगे। अब सिर्फ हम बात करेंगे खून और खून खराबा। कुछ भी बकवास, प्लीज किल मी फॉर दिस, आई नो इट वाज अ पैथेटिक जोक, ठीक है, बट क्या करूं, मुझे ऐसे सच में पता है कि वीडियो लेक्चर्स बहुत बोरिंग होते हैं, इसलिए बोरिंग मतलब मैं ट्राई करता हूं कि ना मैं उसको बोरिंग ना करूं, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मेरे रियल टाइम क्लासेस में होते ना, मेरे को भी मजा आता पढ़ाने और आपको भी मजा आता पढ़ने, है ना, बट टू कीप दैट essence of video lecture I really can't puke out rubbish in video, and
and I really can't dance in the video, so I really can't make it very amusing. तो इसलिए बीच बीच में मैं खुद ही ऐसे बकवास चीजें बोल देता हूँ और खुद ही हंस लेता हूँ और फिर ये भी बोलता हूँ कि प्लीज किल मी फॉर दिस. हाँ, come back. So the next topic which we talk about is specifically we talk about is blood. ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्लड का सेल, ब्लड का प्लाज्मा ये वापस नहीं करने वाला हूँ. जो चीजें हमने नहीं की थी उस चैप्टर में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू गाइस हैव स्टडीड ब्लड वेरी वेल. ठीक है, तो ब्लड के सेल्स आपको बहुत अच्छे से पता है. मैंने सेपरेट लेक्चर्स लिए हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का एक लेक्चर और सिर्फ आरबीसी का एक लेक्चर. ये सब हमने ऑलरेडी बहुत डिटेलिंग में किया है, सो यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम देयर आल्सो. ठीक है, सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लड, we know the difference between blood, we know the difference between blood and plasma, we know the difference between three words, that is blood, plasma and serum. ठीक है, blood, whole blood जो है आप whole blood extract करते हो, so whole blood is plasma plus blood cells. ठीक है, blood minus blood cells and clotting factors. वापस बोल रहा हूं, blood minus blood cells and clotting factors is your serum. ठीक है, blood minus blood cells is your plasma, because plasma can clot. एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा क्लॉट हो सकता है, सीरम क्लॉट होगा या प्लाज्मा क्लॉट होगा, बिकॉज प्लाज्मा में अभी भी इंटीग्रल क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है. वह सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो गए. सीरम बनता ही तब है ना जब हम ब्लड को क्लॉट कर लेते हैं, राइट. तो इसीलिए जब भी जो ब्लड सैंपलिंग लेने आता है वो 2 ट्यूब्स लेता है. अगर उसको सीबीसी करनी है, कंप्लीट ब्लड काउंट करनी है, तो ब्लड को वो लिक्विड स्टेट में ही रखता है. इफ ही हैज टू डू सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल इफ ही हैज टू डू सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिया, सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फेट, ये सब अगर उसको चेक करना है तो वो ब्लड को क्लॉटेड फॉर्म में रखेगा, बिकॉज़ ही हैज टू ऑब्टेन सीरम. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, सो ब्लड का फॉर्मेशन हियर, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड रेफरिंग टू? Formation of the blood is called as hematopoiesis. Hematopoiesis, also referred to as hemopoiesis. ठीक है, hematopoiesis or hemopoiesis. Now, when you talk about hematopoiesis or hemopoiesis, the organ which produces or which forms the blood are called as hematopoietic organ. ठीक है, हीमोपोइसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड. मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, मेरे वर्ड्स ही काफी है. फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स इज कॉल्ड, या फॉर्मेशन ऑफ द होल ब्लड इज कॉल्ड एज हीमैटोपोइसिस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हीमैटोपोइटिस यू आल्सो, अगर हीमैटोपोइसिस है तो आपको हीमैटोपोइटिक ऑर्गन भी याद करना है. हीमैटोपोइटिक ऑर्गन, व्हाट इज द हीमैटोपोइटिक ऑर्गन? विच, जहां पे ब्लड बनते हैं, फॉर्म होता है ब्लड. ठीक है, सो हिमैटोपोइटिक ऑर्गन. आज अगर मैंने आपको पूछा कि ब्लड कहां पे बनता है, तो सारे लोग मोस्ट ऑफ द लोग मेरे को बहुत बुलंद आवाज में बोलेंगे कि ब्लड कहां पे बनता है? बोन मैरो. बिकॉज़ दिस इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो छोटे बच्चों को भी पता है. तो ब्लड कहां पे बनता है? बोन मैरो. बट अगर मैंने आपको ये पूछा कि वेयर डिड यू गेट और व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फर्स्ट आरबीसी ऑफ योर लाइफ, मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपके बॉडी का सबसे पहला आरबीसी, मतलब when you were absolutely not even in life, when you were in your embryonic state, उस स्टेट में सबसे पहला आरबीसी कहां पे बना होगा? तो that is clueless. People are technically clueless, right? So here we'll try to understand the hematopoietic organs. ठीक है, so hematopoietic organs are of 2 types. मतलब majorly they are considered to be of 2 types. One is with respect to prenatal hematopoietic organ in the prenatal life and hematopoietic organ in the postnatal life. ठीक है, natal comes from the word child या infant. post का मतलब बाद में, है ना. जब हम बोलते हैं neonatologist is the specialist of only small children, just newborns. ठीक है, सो नियोनेट, नेट हियर रेफर्स टू नेटैलिटी. ये वर्ड भी सुना रहेगा, नेटैलिटी इज बर्थ रेट. सो नेट हियर रेफर्स टू बर्थ या चाइल्ड.
पोस्टनेटल, बर्थ के बाद आपका जो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी कायनात जानती है, बर्थ के बाद जो हमारा हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है, दैट हिमेटोपोइटिक ऑर्गन जो है दैट इज बोन मैरो। बट कौन सा बोन मैरो है ना, स्पेसिफिकली इट इज रेड बोन मैरो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना पड़ेगा रेड बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में पीला भी आ गया। ठीक है, डेफिनेटली पीला बोला, आई डोंट नो व्हाई। चलो, बट प्रीनेटल लाइफ में तब जब आपकी बोन मैरो डेवलप नहीं होंगे, व्हेन यू आर जस्ट अ लिटिल just developing from a small embryo into a fetus, then fetus into a child. So in that particular stage, in the prenatal life, you did not have a very developed bone marrow, right? So prenatal life में कौन-कौन से organs थे वो हम लोग बात करते हैं. So prenatal life में I told you the first hematopoietic organ of your life, the first hematopoietic organ of your life is yolk sac. ठीक है, yolk sac, and yolk sac 0 to 8 weeks तक, 0 to 8 weeks of your life, मतलब टेक्निकली अगर मैं लाइफ इसकी वीक्स में बोलूं, अगर मैं मंथ्स में बोलूं, सो योर एंटायर जेस्टेशनल पीरियड इज, जेस्टेशनल पीरियड मतलब डेवलपमेंटल पीरियड जो है दैट इज 9 months 10 days. अब आप वीक्स में उसको याद कर लो. ठीक है, सो 0 to 8 weeks मतलब ऑन एन एवरेज 2 months. ठीक है, 2 महीने तक आपके जो ब्लड सेल्स है वो कहां पे बन रहे हैं बेटा, दे आर फॉर्म्ड इन दी yolk sac, स्पेसिफिकली दे आर फॉर्म्ड इन दी yolk sac. ठीक है, बट आफ्टर यूर yolk sac के बाद, yolk sac है क्या बेसिकली, yolk sac इज नथिंग बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. A chapter called as human reproduction में yolk sac के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, but to give you a small information or give you a basic information of what is a yolk sac, please understand. आपने मुर्गी का अंडा देखा है, मुर्गी का अंडा अगर एम्ब्रियोनेटेड एग, ठीक है, आप जो घर पे लाते हो वो वाला नहीं, एम्ब्रियोनेटेड, जहां पे एक मुर्गा और एक मुर्गी दोनों साथ में आए, गुलू गुलू हुआ और फिर अंडे दे दिए मुर्गी ने. क्योंकि उस अभी आई नो दैट कि एम्ब्रियोनेटेड एग में अगर मुर्गी बैठी बहुत टाइम इंक्यूबेट किया, ठीक है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको इंक्यूबेट कर दिया तो उस बेबी में से चिकन निकलेगा. दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली वी हैव डन फॉर माय पीएचडी वर्क. नो, वी हैड टू वर्क ऑन my work was basically on medical biology, right? So we were basically checking, we got a अभी मैं पूरा भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं प्रोपगेट नहीं कर रहा हूँ, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट टॉपिक निकली है तो मैं बता देता हूँ. ऐसी एक पता नहीं ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज थी. तो we used to work with embryonated egg, मतलब technically we used to go to the egg farm where we used to get embryonated egg, है ना, मुर्गा और मुर्गी की बरसों की मेहनत, हम उसको लेके आते थे. ठीक है, और उसको we were checking the effect of न्यूट्रास्यूटिकल कंपोनेंट जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उसकी एक्टिविटी हम चेक कर रहे थे ब्लड वेसल का फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंजियोजेनेसिस. एंजियो रेफर्स टू ब्लड, जेनेसिस रेफर्स टू फॉर्मेशन. तो एंजियोजेनेसिस वो चेक कर रहे थे, एंड अल्टीमेटली व्हाट वी फाउंड वाज, माय जो मेरा काम है, आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा आपको, तो इट हैड वेरी लेस एंजियोजेनिक एक्टिविटी जो हम अल्टीमेटली कैंसर थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं. अब इसके बारे में बाद में का इंफॉर्मेशन दे देंगे. ठीक है, सो आई रिमेंबर वी यूज्ड टू गेट 30 एग्स, एक सेट में 30 एग्स लेके आते थे और उस पे एक्सपेरिमेंट करते थे, एंड वेरी केयरफुली यू हैव टू डू इट, अदरवाइज फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर अगर आपने योग को फोड़ दिया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा. सो वेरी केयरफुली यू हैव टू एडमिनिस्टर द ड्रग. ठीक है, तो उसमें आपने, अब योग सैक के बारे में बात बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 6 या 7 अंडे बच गए थे, एक्स्ट्रा ला दिए थे, तो 6 या 7 अंडे बच गए थे. तो एक मुर्गी जो है इट हैचेस within 21 days, that is the incubation, या that is the gestational time period. ठीक है, within 21 days the chicken will hatch out. So technically जब हमने जो broken eggs होते हैं ना, जो जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, उसमें से बच्चा कभी नहीं निकलता, बिकॉज ब्लड वेसल का फॉर्मेशन ही रोक दिया है ना, तो भ्रूण हत्या कर रहे हैं हम लोग. तो ब्लड वेसल का फॉर्मेशन ही रोक दिया था.
बट कुछ जो है वो इंटीग्रेटेड, जिसको हमने काम नहीं किया था, वो वैसे के वैसे ही रखे हुए थे. So after 21 days, after 21 days, astonishingly what we saw was not astonishingly, we were expecting कि ऐसे कुछ होगा. We were not कि wow, something magical. We expected this, but we did not expect something which happened. ठीक है, तो हमने जैसे incubator खोला, तो we saw that magical moment of chicken hatching from that particular egg. ठीक है, चिकन हैच हुआ एकदम. अगर आपने मुर्गी का चूजा देखा है, एकदम बहुत ही बदसूरत, मतलब ये होता है ना, बच्चे जो होते हैं ना बचपन में एकदम बदसूरत दिखते हैं. उसके बाद उनकी जो क्यूटनेस है वो सब निखर के आती है. आई डोंट नो व्हाई आई सेइंग ऑल ऑफ दिस नाउ, बट ठीक है, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज एनी व्हिच वेज. इट शुड नॉट बी बुकिश नॉलेज ऑलवेज. ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं हो, इतने तो क्रूर नहीं है कि चूजे देखकर फेंक दिया हमने, है ना. सो ऐसे बाहर आए एंड मे बी दे फेल्ट द टच ऑफ द हैंड स्पेसिफिकली, और मैं ही था वहां पे कि दे फेल्ट द टच ऑफ द हैंड. एंड फिर हम ऐसे कुछ भी कीड़े वीड़े लाते थे, उसको ग्रेन्स देते थे खाने को. वी यूज्ड टू मेक पॉरेज, ठीक है, और हम उसको फीड करते थे. एंड साइजली वो चूजे से हमने बहुत ही, मतलब पता नहीं, टाइम पास, लैब में टाइम पास कर रहे थे, तो चूजे से हमने बहुत ही अच्छे क्यूट ऐसे छोटे छोटे चिकन्स बनाए थे. एंड लिटरली आई टेल यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मैं जब भी एक्सपेरिमेंट करने जाता था ना, वो वैसे ही रहते थे लैब में. ठीक है, मैं जब भी जाता था तो आई वाज जस्ट लाइक देयर मामा चिकन. मैं जहां भी जाता था वो मेरे पीछे पीछे से, आपने टॉम एंड जेरी में देखा रहेगा ना, डक जा रही है, डक के पीछे पीछे उसकी पूरी टोली घूमती है. तो जस्ट लाइक दैट, इट वाज सो फनी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि मैं एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन जा रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे मुर्गियां घूम रही है. दैट वाज वन ऑफ द आई डोंट नो. और ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ क्योंकि मे बी दे फेल्ट, और दो मुर्गियां थी जो एक वन ऑफ माय पार्टनर है, ईरानी फ्रेंड, तो उसके पीछे पीछे घूमती थी. आई रियली डोंट नो व्हाट जेंडर वर दे बिकॉज़ दे वर सो लिटिल. And I remember 4 of them following me as if I was their mama, as if. So बोलने का मतलब ये है, तो it is technically when you talk about this animal interaction, it is so wonderful, right? They did not see their actual mother. What they felt was the first touch, and that first touch is so beautiful. That first touch has made a beautiful mark onto their life, that they have started considering us as their mother, right? So that was a very nice moment. मैं फिर उसको घर पे लाया था, हमने पाला उसको. बट वही होता है ना बेटा कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के रख रहे हो उसको, वो पाला, दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड. बिकॉज मेरे को ये नहीं समझ में आता तुमको देना क्या है. मैं कीड़े मकोड़े तो पकड़ नहीं सकता है ना, ये तो नहीं मेंढक थोड़ी हूं मैं. तो ये सब I don't know why am I saying this. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो गया. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे घर पे वो बिल्ली है, उसने 2-3 बच्चों को मार डाला है. कुछ बच्चे हमने फार्म में दे दिया, दैट इज बेंकीज का, जो हम जिधर से अंडे लेके आते थे. एनीवेज, आई डोंट नो व्हाई आई टोल्ड यू. मुर्गी के अंडे से मैंने पूरी अपनी एक एक्सपीरियंस बता दी. तो कम बैक टू योक सैक. ठीक है, अब मुर्गी के अंडे से हम योक सैक को डिफाइन करेंगे. ठीक है, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अ चिकन एग जो आप घर पे लाते हो, वो अनफर्टिलाइज्ड है. उसको आप कितने भी टाइम रखो, उस पे कितने भी टाइम बैठो, कितना भी मुर्गी बनके कुकुड़ बनकर बैठो, उसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला, बिकॉज यहाँ पे मुर्गा और मुर्गी सम्मिलित हुए ही नहीं. ठीक है, इट वाज जस्ट मुर्गी का एफर्ट. मुर्गी को इंजेक्शन दिया था FSH के जैसे, एंड मुर्गी ने अंडा दे दिया, राइट. सो टेक्निकली उससे कुछ नहीं होने वाला है, राइट. So when you talk about that, when you see the entire development of the chicken egg, no, so that yolk का size जो होता है ना बेटा, yolk is basically a nutritive source, because these chicken are developing outside their mother's body. That is, they show external development. ये term आपको animal kingdom में आएगा. Because they show external development, they will have 10 cells grow हो रहे हैं, cells perpetuate हो रहे हैं, so they also require basic amount of nutrition for that, right? So when these cells are growing, when they are dividing so rapidly, so they require a basic source of nutrition,
एंड दैट इज सर्व्ड बाय द योग। तो अगर आप 21 डेज की पूरी फॉर्मेशन देखोगे ना, तो पहले योग, फर्स्ट डे में योग बहुत बड़ा दिखेगा, फिर योग की साइज जो है ना छोटी छोटी होती जाती है, एम्ब्रियो की साइज बड़े बड़े होती जाती है, और एक ऐसा टाइम आता है बेटा जब टेक्निकली पूरा का पूरा योग गायब हो जाता है। मतलब टेक्निकली यू कैन सी, अगर आप, मेरे पास फोटोज है उसके, टेक्निकली यू कैन सी कि पूरा का पूरा जो योग है वो चिकन के बेली रीजन के अंदर चला गया, मतलब वो जाते हुए दिखता है एवरी डे इफ यू एग्जामिन दी फोटोग्राफ्स। तो दैट योग इज बेसिकली बेसिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर दीज एग्स, जहां पे एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रहा है। But in case of humans, please understand, humans में हो रहा है internal development, where the human embryo or fetus, एम्ब्रियो कब बोलेंगे हम बेटा, एम्ब्रियो हम 0 to लेकर 8 वीक्स तक हम एम्ब्रियो बोलेंगे, पोस्ट 8 वीक वी विल कॉल इट एज अ फीटस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रख लो, अभी रखोगे तो अच्छी बात है, वापस बाद में मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट इट्स ऑलवेज गुड टू कीप इंफॉर्मेशन, इट्स ऑलवेज गुड टू पाइल अप इंफॉर्मेशन इन योर हेड, ठीक है। आलिया भट्ट नहीं है आप लोग, है ना, चल कम बैक। तो 0 टू लेकर 8 वीक्स तक क्या बोलेंगे बेटा, हम एम्ब्रियो बोलेंगे, 8 वीक्स के बाद हम उसको क्या बोलेंगे, फीटस। सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दीस टू टर्म्स, दोनों टर्म अलग अलग है बेटा, ठीक है। सो जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, ह्यूमन फीटस है, दैट इज कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट विद द मदर एंड इट इज डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर, सो इट डज नॉट रिक्वायर अ योक। बट क्योंकि एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटी है हम में और बर्ड्स में भी, बिकॉज वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर दैट इज अ रेप्टाइल, वी आर मैमल्स, बर्ड्स, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ ऑफ देम आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल, ठीक है। बर्ड्स का अगर आप एग और रेप्टाइल के एग कंसीडर देखोगे तो इट इज मोस्ट ऑफ सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, बट व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूमन एंड रेप्टाइल्स, सिमिलैरिटी है, ठीक है, सिमिलैरिटी बिल्कुल है, बट there is a lot of dissimilarity also, and that similarity is yolk sac, ठीक है। yolk, आपने अगर नॉर्मल एग भी, अगर ऑमलेट वाला एग भी देखा है, तो yolk जो होता है, yolk के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जो आपने फोड़ा तो yolk पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जनरली हम एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस पढ़ाने के लिए करते हैं, क्या बोलते हैं वो अपने रेजिन का एक्सपेरिमेंट देखा है ना, कि पानी में रेजिन रखो, तो पानी में रेजिन रखने के बाद कुछ 2-3 घंटे के बाद फूक जाती है। ये तो बच्चे वाली एक्सपेरिमेंट है, ये कौन करेगा बकवास। हम क्या करते थे बताइए, कि हम योग से करते थे, ठीक है, योग से इट इज अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग टू सी दैट। ये रेजिन बकवास है ना, सकता है, कर लेते हैं, इजी भी है, ऐसे पानी लिया बीकर में डाल दिया, बट ये तो बहुत टास्क है ना, इसमें से YouTube में पहले अंडे में से योग निकालने का प्रोसेस देखो, है ना। सो वेरी केयरफुली यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर योग विद द योग sac, and you very carefully place it in the water. And after a few moments, what you see that the entire yolk sac swells up, because yolk sac is a semi-permeable membrane जिसके अंदर water चला गया और yolk का पूरा content जो है वो swell up हो जाता है। So that yolk sac is nothing but a semi-permeable membrane which encloses yolk in the oviparous organisms. बट वी आर विविपारस ऑर्गेनिजम्स, विविपारस में योग का कंटेंट जो है बहुत ही कम है, तो वी ओनली हैव द रेमिनेंट ऑफ, मतलब टेक्निकली हमारे इसमें बहुत कम, मैंने गलत टर्म यूज किया, होता ही नहीं है, योग होता नहीं है, बट योग सैक होता है, दैट इज द एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटी। देयर आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियन, एलेंटॉइस, योग सैक एंड एम्नियन। ये चारों के चारों मेम्ब्रेन्स ह्यूमंस में भी है, चारों के चारों मेम्ब्रेन का सिमिलैरिटी चिकन एग में भी है, ठीक है। सो योग सैक इज दैट, एक मेम्ब्रेन है, पार्शियली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट सेमी परमेबल, इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो एंडोमीसोडर्म ओरिजिन का है, तो उसके मेसोडर्मल लेयर से योग सैक में से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ऑल दे आर फॉर्म्ड इनिशियली, ठीक है। तो 0 to 8 वीक्स तक योग सैक में बनता है, पोस्ट 8 वीक्स it is basically seen in लाल कलर, post 8 weeks it is also seen in the liver, उसके बाद स्प्लीन नहीं बोलते हैं बेटा, मैं ऐसे बोल रहा हूं, पता नहीं मेरे को आज बहुत मजा आ रही है। स्प्लीन, लिवर, स्प्लीन, પછી થાઇમસ, પછી प्लासेंटा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर
प्रीनेटल लाइफ के हिमेटोपोएटिक ऑर्गन। यही हिमेटोपोएटिक ऑर्गन जो है आगे चलकर प्लेसेंटा तो काम से गया, जब बच्चा डिलीवर होता है प्लेसेंटा उसके बाद डिलीवर हो जाता है तो प्लेसेंटा तो गया, ठीक है। बट लाइफ में बॉडी में रहता कौन सा है, थाइमस रहता है, स्प्लीन रहता है, ये योग सैक भी गायब हो गया, लिवर रहता है, ठीक है। तो योग सैक, लिवर, स्प्लीन एंड थाइमस, these three organs ultimately they become hemolytic organ in the postnatal life, ठीक है। जो ब्लड सेल बना रहे थे आज वो ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो मेजरली व्हेन यू से द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी मतलब ये हीमोलाइटिक है अल्टीमेटली। लिवर भी हीमोलिसिस में हेल्प करता है, हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड सेल्स। सो लिवर भी हीमोलिसिस में हेल्प करता है, बट लिवर का रोल इज वेरी मिनिमम। अगर एक इंसान के बॉडी में से स्प्लीन निकाल दिया, ठीक है, there are several cases where there are several cases where a lot of people, a lot of patients they undergo splenectomy, ठीक है। स्प्लीन कहां पे है, स्टमक के पीछे, ठीक है। तो स्प्लीनेक्टोमी जनरली डॉक्टर्स इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं अगर कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज है, उसको स्प्लीनोमेगाली है, मतलब स्प्लीन की साइज इंक्रीज हो रही है, या फिर जॉन्डिस की वजह से स्प्लीन खराब हुई है, या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंफेक्शन की वजह से स्प्लीन खराब हुई है, तो स्प्लीन को निकालने के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। बट इफ दिस स्प्लीन इज रिमूव्ड, इसका मतलब स्प्लीन अकेला ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, अगर स्प्लीन निकाल भी दिया तो लिवर अल्टीमेटली विल टेक अप दैट पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। अब ये काम कर रहा है ना, तो लिवर क्यों करेगी, क्योंकि लिवर के पास और भी काम है, 500 से ज्यादा काम कर रहा है लिवर, राइट। So liver has abundant work, so one of the work is breakdown of blood cells, ठीक है। तो ये हीमोपोएटिक ऑर्गन्स थे। हीमोलाइटिक ऑर्गन क्या है, अल्टीमेटली हीमोलाइटिक मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। हीमोलाइटिक ऑर्गन क्या होंगे आफ्टर यू आर बोर्न, लिवर, स्प्लीन एंड थाइमस। थाइमस इज एसोसिएटेड स्पेसिफिकली, थाइमस इज एसोसिएटेड विद ओनली डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। स्प्लीन एंड थाइमस, स्प्लीन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों, ठीक है। लिवर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों, थाइमस में ओनली डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। प्लेसेंटा बची, प्लेसेंटा का फीटल पार्ट जो फीटस की तरफ वाला पार्ट है, ठीक है। प्लेसेंटा इज वन कॉमन टिश्यू जो मदर और फीटस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब इट हैज टू सरफेसेस, वन इज द मैटरनल सरफेस, मैटरनल पार्ट, एंड वन इज द फीटल पार्ट। फीटल पार्ट से कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, पेट की नली। ठीक, कैसा लगता है ना पेट की नली बोलने। तो umbilical cord, let's be very professional with our terms. I will not be using, इसलिए ऐसी गंदी हिंदी बोल देता हूँ ना कि मेरे को खुद पे हंसी आती है। तो umbilical cord, so fetal parts are associated with umbilical cord, ठीक है बेटा। So that is with respect to the hematopoietic organ. I have also told you the hemolytic organ. Now in a very quick pattern we will finish up hematopoiesis. अब मैंने आपको ये बताया था कि हिमेटोपोइसिस का जो टॉपिक है, हिमेटोपोएटिक ऑर्गन है, ठीक है। नाउ हियर वी विल डू सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ हिमेटोपोइसिस, ठीक है। हिमेटोपोइसिस में बेटा आपके पास एक आता है सेल, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जिसको बोलते हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। दिस हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है, कॉमन स्टेम सेल, मतलब ये सबका माय बाप है, सारे ब्लड सेल्स का माय बाप है, ठीक है। और पता नहीं इसको कि क्या बनने का है, ठीक है, इट इज क्लूलेस एब्सोल्युटली। सो व्हाट इट विल फॉर्म, इट कैन फॉर्म आरबीसी, इट कैन फॉर्म डब्ल्यूबीसी, इट कैन फॉर्म प्लेटलेट्स आल्सो, ठीक है। तो हिमेटोपोएटिक ऑर्गन विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, हिमेटोपोएटिक ऑर्गन विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, અહીંયા લખું છું differentiation, and after differentiation it will form two khandan, two lineage का मतलब है खानदान, ठीक है। so it will form two different type of cells, मतलब आपको कुछ तो समझना पड़ेगा ना, माय बाप हो बट आपको दो टुकड़ियों में बंटता है, ठीक है। one will form one टुकड़ी या one खानदान is called as lymphoid lineage, lineage माने खानदान, ठीक है। and the other is called as myeloid lineage।
माइलॉइड लीनिएज, लिम्फोइड लीनिएज यानी माइलॉइड लीनिएज, ठीक है। अब लिम्फोइड लीनिएज का जो सेल है दैट फॉर्म्स लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। प्रो मतलब प्रोडक्शन, जेनाइटर मतलब जेनेसिस, फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसा सेल जो अल्टीमेटली लिम्फोइड लिम्फोसाइट्स बनाएगा, नाम बता रहा है। तो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से अल्टीमेटली क्या डेवलप होते हैं, लिम्फोसाइट्स। समझी क्यों, है ना। इसीलिए इधर कम जगह यूज कर रहा था, इसलिए मैंने इधर इसको सम अप कर दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द माइलॉइड लीनिएज। अब माइलॉइड लीनिएज की जो सेल्स है बेटा, ठीक है, माइलॉइड लीनिएज में सिर्फ लिम्फोसाइट लिम्फोइड लीनिएज का है, बाकी जितने भी सेल्स हैं दैट इज योर मोनोसाइट्स, दैट इज योर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारे जो है ये माइलॉइड लीनिएज के सेल्स हैं, ठीक है। अब माइलॉइड लीनिएज की जो सेल्स है दे विल डिफरेंशिएट इनटू 3 टाइप्स। They will differentiate into 3 types, that is erythroblast, myeloblast અને પછી megakaryocyte. एरिथ्रोसाइट, माय मिस्टेक, एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, પછી मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। अब लॉजिक पता है, एरिथ्रोब्लास्ट ये मैंने आपको पढ़ाया है। एरिथ्रोब्लास्ट न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ आरबीसी है, तो एरिथ्रोब्लास्ट विल अल्टीमेटली डेवलप इनटू रेटिक्युलोसाइट, जो डीन्यूक्लिएटेड स्टेज है। डीन्यूक्लिएटेड डायग्राम नहीं बना रहा, इसमें न्यूक्लियस था और इसमें न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और रेटिक्युलोसाइट विल देन फॉर्म एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। मेगाकैरियोसाइट्स विल अल्टीमेटली फॉर्म अपना प्लेटलेट्स, इट विल फॉर्म प्लेटलेट्स, ठीक है। माइलोब्लास्ट जो है, माइलोब्लास्ट विल फॉर्म 2 मेजर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। अब आपको यह याद रखना है कि ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स है और ग्रैन्यूल्स प्रोटीन्स के हैं, तो ग्रैन्युलोसाइट्स विल शो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। कॉमन सेंस है बेटा ये कि ग्रैन्यूल्स प्रोटीन के हो सकते, कुछ भी ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं स्पेसिफिकली, तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक, खबरदार अगर राइबोसोम बोला तो मैं सिर्फ फालतू के कुछ भी प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूं। I use technically, I most of the time use correct pronunciation. So please don't say ribosome, it is ribosome. ठीक है, कितनी गंदी प्रोनाउंसिएशन तुम लोग करते हो, मैंने सुना हुआ है, ठीक है। तुम लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं होती है, बट मेरे को पता है कि बच्चे कितनी गंदी पहले एक मस्त वाला प्रोनाउंसिएशन है अल्कोहल। व्हाट इज अल्कोहल? हाँ, व्हाट इज इट? अल्कोहल कहां पे होल है, ठीक है। इट इज नॉट अल्कोहल, इट इज अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल हॉल है बेटा, ठीक है। तो ये जब तुम लोग रियल टाइम क्लासेस में आगे तुम लोगों की प्रोनाउंसिएशन ठीक करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू साउंड इंटेलिजेंट, है ना। इंटेलिजेंट हो अच्छी बात है ना। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू साउंड इंटेलिजेंट। और जब बहुत A1 रैंक है, Air 1 स्कोर है, और Air 1 स्कोर को ये क्वेश्चन पूछा कि विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और उसने एकदम गबाड़े जैसे बोल दिया राइबोसोम, है ना, उधर ही पूरी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी चली गई। कम बैक। પછી अग्रैन्युलोसाइट्स, अब इधर लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो जाने दो, छोड़ दो, मत पढ़ो, ऐसे बोलता हूं, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन से है बेटा? 3 टाइप के ग्रैन्युलोसाइट अपने, कौन से? इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। सिमिलरली यू हैव अग्रैन्युलोसाइट्स में देयर विल बी एब्सेंस नहीं, मतलब टेक्निकली लेस राइबोसोम्स होंगे, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। और यहां पे एग्जांपल आता है मेरा मोनोसाइट,
समझी गए बेटा? ठीक है, और ये चीज जो है हमने ऑलरेडी पढ़ी है, पढ़ा हुआ टॉपिक है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग मच मोर टाइम इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसे है कि आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। देखता हूं मैं कितना टाइम हुआ है। देखो 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, पता नहीं कैसे टाइम चला गया। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया है। we'll take up a leave from this particular lecture. ठीक है, tomorrow we will continue with this particular topic. Yes, so tomorrow we'll continue with this particular topic and we'll start up with a new topic, that is blood grouping. Very important topic from the exam point of view, very easy topic है ना with respect to your understanding, but being easy, ठीक है, being easy a lot of people they go wrong because सिर्फ क्या करते हैं वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल देते हैं। ब्लड ग्रुपिंग सबसे सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ये तो दुनिया जानती है। ठीक है, बट उसके जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो थोड़ा सा कंफ्यूज करके आएंगे, तो जेनेटिक्स के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, तो we'll deal with that in the next class. ठीक है, for now thank you so much for your patience, God bless you, take care of yourself, bye bye.